ہماری خاموشی کو بزدلی کا نام مت دینا. اگر ہم بول پڑتے ہیں سکندر کانپ جاتا ہے. اگر ہم بول پڑتے ہیں سکندر کانپ جاتا ہے. میں بولنا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن چھوڑ دیا, حالات بھی کچھ ایسا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, آپ لوگ سن بھی رہے ہیں. اب آپ حضرات کے سامنے ایسے خطیب کو آپ کے مقابلے کے لیے کھڑا کر رہا ہوں. دیکھتا ہوں کہ آپ سبقت کرتے ہیں یا مقرر صاحب آپ پر حاوی آتے ہیں. آپ کو مجمع کو سنجونا ہے, سامنے آ کر خطیب صاحب سے آپ کو ملاقات کرنی ہے, آنکھوں سے آنکھیں ملا کر ان سے آپ کو بات سننی ہے, کیونکہ سامنے سے سنیں گے آپ کے دلوں کے اندر بات سرایت کرے گی. کہوں گا کہ حضرت کھلی کتاب ہے, عنوان کچھ بھی دو. حضرت کھلی کتاب ہے, عنوان کچھ بھی دو. قسم خدا کی جس طرف سے پڑھو گے جان جاؤ گے. جن سے میری مراد ہم سب کے حافظ عزیز بہت ہی محب وطن حضرت اقدس مولانا شاہد عادل صاحب القاسمی دعوت مکاتب العالیہ پرنسپل مدرسہ اسلامیہ یتیم خانہ ارڑیہ ہے. حضرت والا سے گزارش ہے کہ آئے اور اپنے خوبصورت مخصوص لب لگیے اور اپنے خاص کتابت سے ہم سامعین کے قلوب کو جلا بخشیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. ڈائس پر صدارت فرما رہے بہار کے جمعیت علماء کے نائب صدر رفیع کے گرامی قدر جناب مفتی اطہر القاسمی صاحب اور سیمانچل ہی نہیں بلکہ ہند اور نیپال کے مشہور خطیب مستجاب الدعوات جناب حضرت مولانا مفتی نعمان اختر ابراہیمی صاحب ملک کے گوشے گوشے میں اپنے خطابات سے اور اپنے تقاریر سے ملت کو اور ملک کو فائدہ پہنچانے والے جناب مولانا عبداللہ صاحب چترویدی صاحب اور ہم اور آپ کے دل کی آواز, وہ آواز جس کو سن کر آسمان پر چڑیا بھی رک جاتی ہے, وہ آواز جس کو سن کر شیرخوار بچہ بھی کچھ دیر کے لیے وقف کر لیتا ہے کہ کوئی گنگنا رہا ہے, کوئی دل سے دل کی بات کو نکال رہا ہے, اور کوئی دل سے خدا اور رسول کی منقبت اور حمد کو بیان کر رہا ہے, اور اس کو سننے کے لیے پوری دنیا میں حیرت ہو جاتی ہے. جناب دلخیر آبادی صاحب ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ افروز ہے. ان کے علاوہ ڈائس پر تمام علماء کرام, دانشوران اعظام اور آپ تمام حضرات جو ملت کے اور ملک کے نہایت قیمتی اثاثہ ہیں, اور یہ مستقبل کے ہونہار بچے اور بچیاں اور بیٹھی ہوئی ہماری مائیں بہنیں جو پردے میں ہیں, ان تمام حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے نام پر اپنے آپ
गुफ्तगू नहीं होगी, सियासत पर कोई बात नहीं है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जोखिम में जलसा हो और सियासत की बात नहीं हो। सिर्फ अररिया जिला नहीं, सीमांचल की राजधानी सियासत की अगर है तो ये जोकीहाट है। और इस जोकीहाट का नाम सिर्फ आपके अररिया जिला में नहीं, बिहार में भी डर के खौफ से और हैबत से लिया जाता है। उनको तारीफ करने पर मजबूर होना पड़ता है और यहाँ तरह तरह के इल्जाम लगाने पड़ते हैं। और वहाँ पर शबाबुल इस्लाम ने आज सीरत के नाम पर अंदाज का, ऐ नौजवानों, मैं तुम्हारे मुबारकबादी पेश करता हूँ कि तुमने अपना हसीन मजमा को जमा किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मौलाना शाहिद आदिल साहब। ये जोकीहाट जो हर तरह से सच्ची निगाह से देखा जाता है, ये जोकीहाट जिसको तहजीब से रास्ता नहीं, जिसको इल्म से रास्ता नहीं, जिनको तमद्दुन से रास्ता नहीं, ऐसी चीजें लोग बोलते हैं। उस जोकीहाट में आज हम सीरत के उन्वान पर बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि किसान कॉलेज के कैंपस में आज सीरतुन नबी पर जलसा हो रहा है। दुआ कीजिए इस सिसोना वालों के लिए और इस जोकीहाट के पूर्व जवार के नौजवानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कि उन्होंने एक दीनी मजमा का इज्तिमा किया और एक दीनी मजलिस का इनाद किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको शान बना दे और इसके जरिए उनको निजात दे और जन्नतुल फिरदौस में उन्हें जगह दे। मेरे दोस्तों, आज का उन्वान सीरतुन नबी के ऊपर है और मुझे एक खास उन्वान दिया गया है कि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना पर गुफ्तगू करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक है उनके ऊपर मुझे गुफ्तगू करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जो वाक़यात हैं, चाहे वो अखलाक हसना हो, चाहे वो अखलाक सैया हो, चाहे वो अखलाक शनिया हो, उन्होंने जिन चीजों से रोका है या जिन अखलाक को करने के लिए हुक्म दिया है, मुझे उस पर बयान करना है। मेरे दोस्तों, वो मेरा उन्वान है और उसी तहत मैंने कुरान करीम की आयत पर तिलावत की है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और कुरान करीम ने खुद आप नबी करीम के बारे में कहा है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। कुरान ने खुद कहा है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमी अखलाक के मज़हर मुनस्सर हैं। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा हदीस में भी कहा गया है, हज़रत आयशा फरमाती है, कान खुलुक़ुल कुरान, कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान। आपने अपना अखलाक का सबूत शुजाअत में दिया, सदाकत में दिया, अमानत में दिया, दयानत में दिया, इल्म में दिया, कुर्बानी में दिया, ज़ात में दिया, फिक्र में दिया, इल्म में दिया, हर जगह आपने अपना अखलाक का सबूत पेश किया। दुनिया की कोई डिपार्टमेंट ऐसी नहीं, दुनिया का कोई शोबा ऐसा नहीं, दुनिया का कोई गुना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई गोशा ऐसा नहीं जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अखलाक का नमूना नहीं छोड़ा है और अपनी जिंदगी को आइडियल बनाकर हमारे और आपके लिए, बल्कि रहती दुनिया तक के लिए नमूना बनाकर नहीं छोड़ा। कोई ऐसा गोशा नहीं। आप तारीख उठाकर देखेंगे, दुनिया के सबसे अजीम हस्ती, सबसे बड़ी हस्ती, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद कोई शख्स है, वो कौन है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हम कौन हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम कौन हैं? उनके उम्मती हैं। और हम कौन हैं? हम इंसान हैं। लक़द कर्रमना बनी आदम, हमारे लिए कहा गया है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमारे लिए कहा गया है। दोस्तों, हमें सोचना और समझना होगा कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम और आप फॉलोवर हैं, जिनकी इत्तबा हम और आप करते हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या छोड़ा है, हमें किस तरह जिंदगी गुजारने का दर्द दिया है, हमें उस पर अमल करना होगा। अभी आप तस्दीक दे रहे हैं, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आप अंग्रेजी में लिख करके बता रहे हैं कि आपने वो जुमला नहीं सुना था, फिदा का अबी व उम्मी। क्या आपने वो जुमला नहीं सुना था कि दुनिया की सारी चीजें, तमाम की तमाम चीजें जो दुनिया में मौजूद हैं, अगर माँ बाप भी है तो उससे भी ज्यादा
अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, सब समय कहीं जा रहे हैं, पूरी कौम पूरी बटालियन आपके साथ, आप एक कांटेदार बगीचे में बाग में कहीं जहां बबूल और दूसरे कांटे के दरख्त वाले गाछ थे वहां पर आराम फरमाते हैं। पूरे सहाबा लोग जो आपके साथ हैं वो भी आराम फरमा देते हैं। उस जमाने में तलवार का दौर होता था, एक तलवार को कहनी पे लटका देते हैं, सभी सो जाते हैं, आराम करते हैं, दोपहर का टाइम होता है। इस बीच में एक शख्स आता है और वो तलवार लेके खड़ा हो जाता है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूंगा जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाती है। तो जो शख्स हाजिर हुआ था इंतकाल और कत्ल के गर्ज से, कत्ल की नियत से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते, तुम्हारी तलवार में वो धार नहीं, तुम में वो शक्ति नहीं कि तुम मुझे कत्ल कर दोगे। तो वो शख्स गुरूर में हुआ, कहा कि सब तो सोया हुआ, तलवार मेरे हाथ में है, ये निहत्था है, इसको मार देंगे, कैसे बचा लेंगे अपने आप को। तो उस शख्स ने कहा कि भाई आपको अभी कौन बचाएगा, है मोहम्मद, तुमको कौन बचाएगा। 3 मरतबा उस शख्स ने कहा, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीन और इत्मीनान के साथ कहा कि तुम नहीं मार सकते, तुम्हारे अंदर में वो ताकत नहीं कि तुम मुझे मार दोगे, मेरा बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है, मुझे वही बचाएगा। और उनका बाल बेटा नहीं हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं कहा। ये है अखलाक, ये है उनका अखलाक। और अगर हम जो कि हाट में चल रहे हैं, खुदा न खास्ता किसी के साइकिल से, मोटरसाइकिल से, ठेला से, रिक्शा से थोड़ी सी चोट लग गई, थोड़ी तकलीफ पहुंच गई, तो हम खानदान दर खानदान पे उतर आते हैं और अपनी पूरी शक्ति उसको जलील करने में लगा देते हैं। मेरे दोस्तों, ये तरीका नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का अमल नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, वाकया बताते हैं अखलाक का। अखलाक का मेयार देखिए कि एक औरत, एक यहूदी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में गोश्त में, बकरी का गोश्त का रिवायत में आता है कि उसमें जहर मिला दिया। क्या हुआ? जहर मिला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक से एक मुअजिज़ात का ज़ुहूर हुआ है उनसे। वो खाना जो हाजिर हुआ था, उन्होंने रिवायत में आता है कि वो खाना खुद कहा कि मुझ में जहर है, मुझे नहीं खाओ। और जब मामले की तफ्तीश हुई और जब पूछा गया, उस औरत को बुलाया गया, हे औरत, तुम हाजिर हो, तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में जहर क्यों मिलाया? मालूम है, उस औरत ने इकरार किया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की नियत से ये काम किया था, आपकी जान लेने की नियत से ये काम किया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो लोगों ने, सहाबा ने कहा, हे अल्लाह के नबी, आप हुक्म दें इसको कत्ल कर दिया जाए। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये नबी रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया है, ये नबी हम तमाम लोगों के लिए रहमत बनकर आया है, इन्हें माफ करता हूं तो माफ कर दिया गया। कुछ भी नहीं कहा, ये नबी के पास आ गया, ये उनका अखलाक का नमूना। इसी तरह ज़ैद बिन हारिस के बारे में आप सुनते हैं कि गुलाम था। ज़ैद बिन हारिस अपनी वालदा के साथ ज़माने जाहिलियत में ननिहाल जा रहे थे। जब इस्लाम के मानने वालों को खबर हुई कि नहीं, इस्लाम के नहीं मानने वाले थे, एक कबीला था, उनको जब खबर हुई कि इधर से काफिला गुजर रहा है, तो उस काफिला को लूटने को लोगों ने तरकीब बनाई, उस काफिले को लूट लिया। ज़ैद बिन हारिस को भी उन्होंने कब्जे में लिया। कब्जा में जब ले लिया, लेने के बाद वो उसको गुलाम बना करके मक्के में ले जाकर के उन्होंने उसको बेच दिया। और खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाला हजरत खदीजा का कोई खास आदमी, वो खरीद करके हजरत खदीजा को देता है, देती है ज़ैद बिन हारिस को। उसके बाद ज़ैद बिन हारिस को हजरत खदीजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अतिया कर देती है, ये गुलाम है, इसको आप रखिए। तो वो ज़ैद बिन हारिस के घर वालों को, जब उनके वालिद को उनकी गुमशुदगी का पता चला कि भाई कहाँ गुम हो गया है, वो रोते थे और शेर करते थे। जिस तरह भी दिन खैराबादी हमारे और आपके दिल को झकझोर रहे थे, वो भी कर्ब और गम में, जुदाई पर, बेटे की मफारत पर वो भी असहाय करते थे कि मेरा नाका कहाँ गुम हो गया, मेरा बच्चा कहाँ गुम हो गया। इस तरह वो ढूंढा गया। तो उस कबीले का एक आदमी उसी साथ मक्कातुल मुकर्रमा हज करने के लिए आया, उसके साथ में कई लोग थे। उन्होंने मक्कातुल मुकर्रमा में ज़ैद बिन हारिस को देख लिया। तो उस कबीले के लोगों ने पूछा कि तुम ही ज़ैद बिन हारिस हो?
उन्होंने कहा मैं ही हूँ। जब वो लोग मक्का से हज करके वापस अपने कबीले में गए तो उनके वालिद को कहा कि ज़ैद बिन हारिस तो मक्का में है और मोहम्मद के पास है। उनके वालिद की खुशी और उनके वालिद का चेहरा खिल उठा कि मेरा बेटा जिंदा है, बाहयात है, कहीं है। वो अपने भाई के साथ यानी ज़ैद बिन हारिस के चचा को लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर में हाजिर हुआ और कहा है मोहम्मद तुम अपने कबीले के सरदार हो, ऐ मोहम्मद तुम अपने कबीले के सबसे बड़े आदमी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा बेटा मुझे हिदायत कर दो और उसके बदले में जो फिदिया देना पड़े मैं उससे ज्यादा दूंगा, तुम उसको कबूल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक का क्या मुजाहरा उसके मालूम है? उन्होंने कहा कि वाक़अतन ज़ैद बिन हारिस मेरा गुलाम है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने बेटे ज़ैद बिन हारिस को पूछ लें, अगर आपके साथ वो जाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, अपना बेटा भतीजा को लेके जाए। जब बाप और चचा अपने भतीजा से पूछने गया कि तुम्हें मैं अपना घर ले जाना चाहता हूँ, चलो अपना घर, मैं जो भी भतीजा लगेगा नबी करीम इसको मोहम्मद को दे दूंगा, तुम चलो मेरे घर। तो सुनिए तारीख रोकती है मेरे दोस्तों, जब आप सीरत को पढ़ेंगे तो आप आंसू छलक जाएंगे। वो ज़ैद बिन हारिस क्या कहने लगा? उन्होंने कहा ऐ अब्बा हुजूर, ऐ चचा मोहतरम, मैं नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर कभी भी आपके साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि जो अखलाक, जो नमूना, जो जिंदगी जीने का तरीका, जो जिंदगी अपनाने का ढंग मैंने इस दर में देखा है वो कहीं नहीं देखा है, मैं इस दर को छोड़कर कहीं नहीं। उनके चचा और उनके अब्बा खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतमईन हो तो वापस चले गए। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। हम तो उन्हीं की उम्मती है ना, वो अखलाक को हमें अपनाना होगा। जब तक हम उस अखलाक को अपनी हमारी जिंदगी में नहीं लाएंगे तो सिर्फ या अल्लाह मोहम्मद कहने से कुछ नहीं होने वाला, फिदा का भी वो कहने से कुछ नहीं होने वाला है। उसको अपने दिल में, अपने हमारी जिंदगी में दाखिल करना होगा, तभी हम और आप कामयाब हो सकते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुकारिबन लिउतिम्मिल अखलाक, कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा गया हूँ ताकि मैं अखलाक की तकमील कर दिया। हदीस है उसके बारे में, जिसके बारे में कुरान करीम खुद कहता हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अखलाक के मालिक हैं, उसके बारे में हम और आप क्या बयान कर सकते हैं, क्या फज़ाइल बता सकते हैं? मेरे दोस्तों, जब तारीख के औरात को देखेंगे, उठा करके पलटेंगे तो आपको यही महसूस होगा कि इस उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दरबार में और अल्लाह के हुजूर में हर वो कोशिश है, हर वो इबादत है, हर वो तुर्क अपनाया है जो एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में किसी की बस की बात नहीं। तो उस मजलिस में हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में और सीरत की मजलिस में, तो हमें चाहिए कि अपने आइडियल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, उनके अखलाक को अपने बच्चों में व्यवस्था करें, अपने घरों में ट्रांसफर करें, अपनी माँ बहनों को बताएं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अपनी 11 बीवियों के साथ कैसा रहा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अपने गैर मुस्लिम कबाइल के साथ में कैसा रहा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अपने गैर मुस्लिमों के साथ में कैसा रहा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक यहूदी और नसरानियों के साथ में कैसा रहा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक मजूसियों के साथ कैसे रहा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कर्ज लिया किसी यहूदी से और उस यहूदी ने आकर आपके दरबार पर आपको जलील किया, साहबा गुस्से में लाल किया होगे, अकीदत से झूम उठे एक यहूदी कैसे शादी कर रहा है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ एहसास कराया ऐसा भी रुक जाओ, मैं इनका मकरूज, उनका हक है, इनको जो बोलना है बोलने दो, इनका हक है, मैं इनका मकरूज हूँ, ऐसा नमूना हम और आप करेंगे, हम और आप करेंगे। अगर 1 टका कोई ले लेगा उसको दुनिया भर की बात सुना देंगे, उसकी मजबूरी को नहीं देखेंगे, और कुछ लोग बनावटी मजबूर बन जाते हैं, उनको लेकर के देने वाले नहीं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी और दयालतदारी का नाम पेश किया। मेरे दोस्तों, हम उन्हीं के फॉलोअर हैं, उन्हीं के मानने वाले हैं और उन्हीं के सीरत पर अमल करने वाले। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल नहीं करें, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल पर अमल नहीं करें, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को नहीं मानेंगे, उस वक्त तक हम कामिल मुसलमान नहीं हो पाएंगे।
اور جیت کر کے آئے میرے دوستوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق بھی دیکھیے. ایک جنگ میں کفار اور مشرکین کی شکست ہوئی تو صحابہ کرام نے بہت کفاروں کو قتل کیا, مارا کھوٹا. اور جب آدمی جانتے ہیں کہ میدان جیتتا ہے تو خوشی میں کچھ بھی کر جاتا ہے. تو اس میدان میں بچے بہت تھے. مسلمانوں نے بچوں کا بھی قتل کیا. مسلمانوں نے بچوں کا بھی قتل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے خوشی میں ان لوگوں نے بتایا کہ آج تو کفار کو ہم لوگوں نے بہت مارا, یہاں تک کہ ان کے بچوں کو مارا. اے مسلمانوں قربان ہو جاؤ اس نبی کے نام پر جنہوں نے جواب دیا کہ آپ نے غلط کیا, آپ نے بچے کو کیوں قتل کیا؟ جنگ میں بچے تھے, آپ نے کیوں قتل کیا؟ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, وہ تو کفار کے بچے تھے, مشرک کے بچے تھے, اس کو نہیں مارتے تو آگے چل کر وہ خود ہم لوگ کے سامنے میں آتا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں خبر نہیں آپ میں سے کتنے لوگ پہلے کفار اور مشرک کے بچے ہو. صحابہ سے کہا کہ آپ بھی تو پہلے کفار کے بچے تھے, مشرک کے بچے تھے, بعد میں ایمان لیا ہے. سبھی لوگ خاموش ہو. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. فتح مکہ کے موقع سے ابو سفیان اور ہندا کو بھی حراست میں لیا گیا. ابو سفیان اور ہندا نے جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ کو کچا چلایا تھا, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کئی جنگیں لڑی تھی, جنہوں نے اسلام کو بہت ہی سرخوب کیا تھا, لیکن جب فتح مکہ کے موقع سے وہ گرفتار ہوئے, معلوم ہے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. لوگوں نے کہا, صحابہ نے سوچا کہ آج تو سفیان کو اور ہندا کو چھوڑیں گے نہیں, بتا لیں گے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, ارے ہم انتقام لینے والوں میں سے نہیں ہیں. آج تو ابو سفیان ہندا کے گھر میں جو کما لے گا ہم اس کو بھی محفوظ کر دیں گے, اس کو بھی آزاد کر دیں گے, اس کو بھی چھوڑ دیں گے, اس کو بھی معاف کر دیں گے. اور آج جو اپنے گھر میں چلا جائے گا, اپنے دروازے سے اندر چلا جائے گا, ہم ان کو بھی چھوڑ دیں گے. آج جو ہم لوگوں سے چھوٹ جائے گا ہم ان کو بھی چھوڑ دیں گے. یہ اخلاق نہیں ہے کہ ہم یہاں کے بیرسٹر ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں, بہت رئیس ہیں, بڑے سیاستدان ہیں, بڑے جاگیردار ہیں, زمیندار ہیں, کوئی آئے گا تو ہم اس کو پریشان کریں گے, ہیچ نگاہ سے دیکھیں. نہیں, انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے. انما المؤمنون اخوہ, تمام مسلمان, تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے. المسلمون سلم المسلمون من لسانه ويده. حدیث ہے, ایک مسلمان سچا وہی ہے جس سے ان کے بھائی, ان کے پڑوسی, ان کے ہاتھ سے, ان کی زبان سے محفوظ رہ سکے. وہ تاریخ ہمیں اپنے اندر میں دہرانی ہوگی, وہ صفت ہمیں اپنے اندر میں لانی ہوگی. اگر نہیں لائیں گے, میں کھل کے بات کرتا ہوں اسٹیج سے, یہاں پر بہت سارے بوڑھے ہوں گے, بہت سارے یہاں زمینداروں کی بستی ہوگی جس کو اسٹیٹ کہا جاتا تھا. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ اس کے دروازے میں اس زمانے میں کوئی جوتا چپل پہن کے نہیں جاتا تھا. بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پولیس, کوئی انسپیکٹر کسی کے دروازے پر نہیں جایا کرتی تھی, افسر بھی جانے سے ڈرتا تھا, اس کو انومتی نہیں ملتی تھی. لیکن آج ان درباروں کا کیا حال ہے؟ اگر آپ موجود ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان نوابوں کا, ان درباروں کا کیا حال ہے. آج ان کے بچے پھوٹی کوڑی کے لیے محتاج ہیں, آج ان کی نسل بھگت رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے انسانیت کو الگ درجے میں بانٹ دیا, انسانیت کو حقارت کے ٹکڑے میں کھڑا کر دیا, انسان کو انسان نہیں سمجھا, مانوتا کی انہیں قدر نہیں کی, بلکہ انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کی برابر کی. آج دیکھیے گا اپنی نظر سے, اگر آپ کے گاؤں میں ایسے لوگ ہیں اور ہوں گے, میں بھی اسی راستے پر ہوں گے, آپ ان کے حالات کو دیکھیے گا. ایمانی حالات کمزور, مالی حالات کمزور, ذہنی حالات کمزور, سمجھ والی حالات کمزور, اللہ نے اس کو مفلوج بنا کر رکھا. آج وہ نواب کے بچے, وہ زمیندار کے بچے, وہ مشورہ کرنے والے کے بچے, وہ سودخوروں کے بچے, وہ پیاز خوروں کے بچے, وہ افداروں کے, اس زمانے کے ایک دوسرے کے گرہن رکھنے والوں کے بچے آج دیکھیے گا ایک روٹی کے لیے ترس رہی ہے. آج دیکھیے گا ان کی اولاد کو ایک کھانے کے لیے ترس رہی ہے. تعلیم ہے, نہ تہذیب ہے, نہ تربیت ہے. میرے دوستو, یہ سب ہمارے اور آپ تک دیے کا برکت ہے. ہم نہیں بولتے یہاں پر, اپنی کہاوت ہے نا کہ باپ ماں کرتا ہے تو بچے پر اس کا راستہ جاتا ہے. نہیں بولتے ہیں کہ ہم جیسا کریں گے ویسا ہی. تو دوستو یہ بات بالکل صحیح ہے. آپ اگر اس دنیا میں کسی کی عزت و عصمت کو لوٹیں گے, آپ اس دنیا میں کسی کے گھر کو لوٹیں گے, آپ اس دنیا میں کسی کے مال کو گھبن کریں گے, آپ اس دنیا میں کسی کے مال کو غصب کریں گے,
में उतार। अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक किताब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवज्जुह से हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। पूरे अखलाक से, इक्तिदार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अमाल कुरान करीम के एक आयत से तशरीह होती है। मेरे दोस्तों, अगर आप उस पर अमल करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब हैं। बहुत सारे मुक़र्रिरीन हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं अखलाक हसना से मुताल्लिक़। अल्लाह के रसूल ने